Teaching is the only profession in the world that creates all other professions. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ IAS ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 25 years ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਕਸੇਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆ ਰਹੇ हैं ਸਾਡੇ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਰ I am feeling honored to be seated with you and talking to you like this, and thank you very much for giving us your valuable time. Thank you, it's my pleasure as well. Thank you. Sir, ਤੁਸੀਂ I think you feel comfortable in English or Hindi? In both ways, not in Punjabi, right? सर क्या मतलब इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है और अब आप यहाँ राजपुरा में हैं, एंड यू हैव बीन वर्किंग विद अलायंस इंटरनेशनल स्कूल, तो एज अ प्रिंसिपल, सो व्हाट डू यू हैव टू से कि हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर सच अ वास्ट एक्सपीरियंस? अब एक छोटे से शहर में हो और इतने लोगों को आप, इतने बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे। सर, नथिंग लाइक स्मॉल सिटी और बिग सिटी. We are dealing with students whether they belong to a small city or big city. They all are equal. The ultimate thing is that we have to give proper education, train them, guide them. That is more important. Right. So do you think you had to face some difficulties यहाँ पे? जैसे बच्चों का कई बार होता है यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत आती है, बच्चे ज़्यादा कोई अनोइंग होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा भी आपने कभी फील किया है यहाँ पे? तो हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, बच्चे हैं, उनका काम है शरारत करना भी जी। Being a teacher, it is our responsibility how to tackle situations. उन सिचुएशन को समझना, बच्चों को समझना, उसके अकॉर्डिंग उनको समझाना, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम काउंसलिंग बच्चों की करते हैं, उनके पहलू को समझते हैं, उनकी बातों को, उनके थॉट्स को समझ के हम एक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली दे इम्प्रूव। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन आप खुद भी करते हो कि टीचर्स के साथ आप इंटरेक्शन करते हो ज़्यादा? I daily visit class. Okay. I talk to students, I talk to teachers, even I call them in my office, personally counsel them. Okay. Try to know what going on, how they are feeling in the school, what improvement they want, what they need to change. I discuss all the things with the students and they feel very happy, they feel very comfortable while talking to me. And this way we communicate each other and improve things. And what about the parents, sir? So you meet the parents also? Definitely parents are key of any school. They play a vital role in the development of the school. मैं यहाँ आकर पेरेंट्स के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग तो सारे स्कूल्स करते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस बार मैंने जो पेरेंट टीचर मीटिंग का सिस्टम यहाँ शुरू किया, उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ाई। ओके। जब वो यहाँ आए तो फर्स्ट PTM जब मैंने यहाँ की तो उनके लिए भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान की जिससे वो लोग आके इस PTM का पार्ट फील करें, उनको भी लगे कि दे आर वेलकम्ड, समथिंग इज़ डन फॉर देम, सो दे फेल्ट वेरी हैप्पी। उनके लिए कुछ गेम्स रखी थी, उनके लिए इन्वॉल्वमेंट में कुछ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ ली गई, उसके बाद उनका फीडबैक लिया गया, तो दे वर वेरी हैप्पी। दे सेड कि इस तरह की PTM हमारे एरिया में कभी किसी ने नहीं की, कि जब पेरेंट्स को PTM पे आ रहे हैं, बच्चों के टीचर्स से तो मिल ही रहे हैं, वो जी। बच्चों के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में तो जान ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल में। दैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दे शेयर्ड विद अस। क्वाइट इनोवेटिव समथिंग। तो पेरेंट्स जैसे अब घर से बच्चे को भेजते हैं, पेरेंट्स ने बच्चों को करना है, उसके बाद तो जो टीचर्स हैं
वही उनके पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है, जो क्या वो बन के निकलेंगे, वो तो टीचर्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सर। देखिए, मेरा ये मानना है स्कूल का और पेरेंट का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। जी। हम कभी भी ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि अब मेरा बच्चा तो सर 8 घंटे या 6 घंटे आपके साथ रहता है, आपकी जिम्मेदारी है। जब तक माँ बाप और टीचर मिलके बच्चे के फ्यूचर को नहीं संवारेंगे, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जिन गलतियों का और जो वीकनेसेस का पेरेंट्स को पता है, उससे कहीं ज़्यादा एक अध्यापक को पता होता है। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स वहाँ काम करता है जहाँ माँ बाप भी पीछे छोड़ जाते हैं। माँ बाप जो गलतियों को नहीं पकड़ पाते, टीचर उनको भी पकड़ के उजागर करता है, उनके ऊपर काम करता है। तो उससे बच्चे की दो तरफा डेवलपमेंट होती है। पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है कि बच्चा आपका यहाँ पर गलत जा रहा है, आप उसको यहाँ पर काउंसिल करिए, या टीचर खुद भी कोशिश करता है कि उन चीज़ों पे काम करे और बच्चे के लिए उसको काउंसिल करके उन चीज़ों से ऊपर उठाए उसको और आगे बढ़ने में मदद करे उनके लिए। सर, जब से आप यहाँ आया, मैं देख रहा हूँ कि अलायंस इंटरनेशनल में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी उथल पुथल हो रही है, काफ़ी आप स्टाफ भी बाहर से हायर कर रहे हैं, और बिल्डिंग की जो है मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत तेज़ी से और चल रहा है, और क्लासरूम शायद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि इस एरिया में पोटेंशियल बहुत है। जी। बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी। हम सब ने मिलके कोशिश की है पिछले 8-10 महीने में, बच्चों के एकेडमिक पे बहुत काम किया है। ओके। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चों के अंदर। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द एकेडमिक इम्प्रूवमेंट, ओके। so they are showing trust. Hoping that I requested my management that we need more rooms the coming years we may require. Immediately they sanctioned all the requirement and construction is, you can see, आप देख रहे हैं कि construction full swing पे चल रही है। Hopefully हम इस एरिया के लोगों को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे, उनको कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे इस एरिया में। आज की सिचुएशन पे बात करें तो सर, क्या देखते हो आप अलायंस, एक बच्चे को एडमिशन कराना है किसी स्कूल में, सो अलायंस में क्यों आएगा वो बच्चा, क्या ऐसी खास बात है? सर देखिए, आज का जो समय है ना जी। वो AI बेस्ड है। राइट। I can guarantee that my school is future ready school. 100% we are based on technology. My management strongly believe, and I too, that without technology no school can grow. If you see in the past, जिन स्कूल्स ने चेंजेस नहीं किए, जिन्होंने इनोवेशन नहीं की, या जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले, वो धीरे धीरे डाउन होते चले गए। तो आज समय ऐसा आ गया है कि हमें अपने आप में बदलाव भी लाने हैं, टेक्नोलॉजी में भी लाने हैं, इनोवेटिव भी होना है। आप देखेंगे कि हमारा स्कूल इस एरिया में ऐसा है जो बहुत ही जब बड़े लेवल पे एक बड़े ब्रांड के साथ एक रोबोटिक लैब लेकर आया है, और बड़े इनोवेशन के साथ बच्चे उसमें अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और बहुत बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मॉडल्स बना रहे हैं, और कॉम्पिटिशन्स के लिए जा रहे हैं और जीत कर भी आ रहे हैं। ओके, सो मतलब आपका मेन फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी पे है डेफिनेटली ज़्यादा, और एक्टिविटीज़, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे बच्चे तो वो भी नहीं ना, एक्टिविटीज़ भी तो चाहिए। अगर आप देखेंगे, हमने अपने स्कूल के साथ इंटरनेशनल स्कूल का नाम रखा है। जी। वी आर वर्किंग ऑन इट। अगर आप हमारे कैंपस का टूर लेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल, बैडमिंटन, मल्टीपर्पज़ 500 कैपेसिटी ऑडिटोरियम, lush green area to play. We are hiring coaches. We are tied up with the coaching academies, sports academies. They are coming here. They are training and coaching students, and our students are winning state level awards and taking part in national level as well. ओके सर, ये जो हमारा इधर का एरिया है, राजपुरा, बनूड़, ये जो एरिया है ना, एक और बड़ी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे, तो उसमें कैसे है अभी आपका, कैसे compete कर रहे हैं, मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर जो है आपका, या कोई ऑफ़र ऐसी, जैसे अब एडमिशन्स का टाइम है उसमें, या कोई और आपके प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप स्कूल की तरफ से कुछ कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि फ़ी कभी भी किसी स्कूल में मैटर नहीं करती। अगर आप उस फ़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर आप बच्चों से जो पेरेंट्स से जो फ़ी चार्ज कर रहे हैं जी। आप उसके इक्विवेलेंट उनको चीज़ें दे रहे हैं,
जो आपने कमिट किए हैं, कभी भी कोई पेरेंट आपके पास आके फ़ी के लिए कभी नहीं करेगा। अगर उसको जो फ़ी वो पे कर रहा है उसके कंपेरेटिवली बच्चों को एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ओके, या बच्चों की एकेडमिक चीज़ों पे हायर कर रहे हैं, टीचर्स हायर कर रहे हैं, या आप बच्चों को उस लेवल के टीचर्स दे रहे हैं, तो कभी भी पेरेंट्स फ़ी के लिए कभी इशू नहीं करते। हाँ, जब कभी हम फ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं और जो कमिट किया उससे बहुत लोअर लेवल की हम एजुकेशन दे रहे हैं, टीचर्स बड़े लो ग्रेड हायर कर रहे हैं, ठीक है, लेस पे हायर कर रहे हैं, या बच्चों को एक्टिविटी, डेफिनेटली इट विल कम। इसके बावजूद हमारे स्कूल्स ने न्यू बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखे हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे टेस्ट में, उसमें उन बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स की भी प्रोविजंस हैं। एडमिशन फ़ी में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और भी क्राइटेरिया पे हम स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जिस एरिया के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट इज़ ओपन कि उनको किसी भी तरीके से, अच्छे बच्चों को, फाइनेंस इज़ नॉट इशू, तो उनको किसी न किसी तरह से मदद करके अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके। नहीं, ये जो स्कॉलरशिप का है सर, स्कॉलरशिप का आप ये थोड़ा सा मेरे को ये समझाइए, इसमें कैसे कि जो नई एडमिशन्स हो रही हैं उनके लिए है ये, या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है? बेसिकली ये नए बच्चों के लिए है। ओके, जो न्यू बच्चे हैं हमारे पास एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये स्कॉलरशिप प्लान रखा है। तो जो बच्चे कई बार नहीं अफोर्ड कर पाते, या कई बार बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाते, और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी उठाएंगे, और जो कई आप इकोनॉमिक वीक हैं और ब्रिलियंट हैं वो भी इसमें आकर फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट वगैरह आप कंडक्ट करते हैं? हमने ऑलरेडी एक टेस्ट कंडक्ट किया है, और एक और आगे वाले मंथ में, इसी मंथ में आने वाला है। तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकल गई है, तो बच्चे जो अपियर होना चाहते हैं उस टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। तो ये कौन सी क्लास से लेके कब तक है ये? ये सारी क्लासेस के लिए ओपन है। ओके, तो इसमें मतलब फ़ीस में कंसेशन हो जाएगा जो बच्चे इसको पास करते हैं? डेफिनेटली इसमें एक एडमिशन फ़ीस हमने रखी होती है, उसमें स्कॉलरशिप माइनस होती है उसमें से, जो कम होती है उसमें से। ठीक है। सो अब ज़्यादा नहीं समय लूँगा, आपका समय कीमती है। एक लास्ट में ये बताइए कि आपका और अलायंस इंटरनेशनल को लेके आने वाले 3 से 5 साल में क्या विज़न लेके चले हैं आप? देखिए, किसी भी स्कूल्स का विज़न, उसके लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ, मेरा पर्सनल मानना है जितने भी स्कूल्स खुलते हैं सबका एक मोटो होता है कि अच्छी एजुकेशन दी जाए। जी, हमारा भी यही विज़न है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। इसके साथ साथ बच्चों को क्रिएटिव, बच्चों को इनोवेटिव, बच्चों को डिपेंडेंट, और इसके साथ साथ एक ऐसा इंसान बनाया जाए जिसमें ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो। जी, बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकले। सारे लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम उसे एक अच्छा इंसान, ग्लोबल सिटीज़न बना सकें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आई वांट कि दैट ईच वन ऑफ माय चाइल्ड शुड बिकम अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आपका विज़न और आपका ये, उम्मीद करते हैं कि आपकी गाइडेंस में ये अलायंस इंटरनेशनल जो स्कूल है ये और ज़्यादा तरक्की करेगा और बच्चों को ऐसी ही शिक्षा आप देते रहोगे। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम आगे इसी तरीके से अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते रहेंगे और लोगों को एक अच्छी एजुकेशन अच्छे स्कूल में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सो ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।